معزز دوستوں، ویلکم ٹو ماجد گرا یوٹیوب چینل۔ موبائل فون ریپیئرنگ کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ موبائل فون ریپیئرنگ میں میگنیفائر لیمپ اور مائکروسکوپ کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ سب دوستوں جانتے ہیں کہ موجودہ پی سی بی جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہو چکے ہیں۔ ان کے اوپر جو ایس ایم ڈیز لگی ہوئی ہیں، جو کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں، وہ ایکسٹریملی اسمال ہیں، وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ عام آنکھ سے ہمیں وہ دکھائی بھی نہیں دیتے۔ تو ان کو ریپیئر کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ان کو واضح طور پر دیکھ بھی بالکل نہیں سکتے۔ تو ایسی صورت میں جب ان پی سی بی کے اندر کوئی کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتا ہے، تو ہمیں ریپیئر کرنے میں بہت پریشانی آتی ہے۔ تو یہ جو میگنیفائر لیمپ ہے یا یہ جو مائکروسکوپ ہے، یہ ہمیں ان پوائنٹس کو بہت بڑا کر کے واضح اور صاف دکھاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم وہاں پر ریپیئرنگ کر سکتے ہیں۔ تو ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی جگہ کو، کسی بھی پوائنٹ کو واضح اور بہت موٹا کر کے دیکھنا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر پہلے میں آپ کو میگنیفائر لیمپ کے متعلق معلومات فراہم کروں گا، اس کے بعد پھر ہم مائکروسکوپ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ دونوں چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ تو دوستو، یہ ہمارا میگنیفائر لیمپ گلاس ہے۔ یہ بالکل سستا ہوتا ہے، یہ مہنگا نہیں ہوتا جب اس کا کمپیئر کیا جاتا ہے مائکروسکوپ سے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر دوستو ایک کنویکس لینس یہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ اگر آپ دیکھیں، اور اس کو اس طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے چاروں طرف ایل ای ڈی لائٹس یا فلوریسنٹ لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کے۔ تو جب ہم اس کے اوپر موجود بٹن کو دباتے ہیں تو یہاں پر گلو ہوتی ہے، جس کی روشنی جو ہے نیچے اس چیز پر پڑتی ہے جس کو ہم نے واضح طور پر دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے دوستو کام کرتا ہے کہ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے ہاتھ میں ایک کنویکس لینز ہے۔ تو اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہی میں اس کو فاصلہ ڈسٹینس کو بڑھاتا جا رہا ہوں، میری چیز جو ہے مجھے واضح طور پر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے، لیکن میں ہٹاتا ہوں تو وہ دیکھیے چھوٹی چیز آتی ہے، اس سے ہمیں وہ بڑی نظر آتی ہے۔ تو بالکل سیم ٹو سیم جو ہے یہ کمال میگنیفائر لیمپ کا ہے کہ یہ ہمیں چیز کو بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس کے اندر دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ لینس جو ہے کافی بڑا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی اور ٹکی ہوتی ہے، اس طرح کا ہونا چاہیے۔ جب آپ نے دونوں آنکھوں سے دیکھنا ہو تب یہ آپ بڑے والا لینس یوز کرتے ہو، یہاں پر آپ آسانی سے دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے ڈیٹیلز کو بہت واضح دیکھنا ہو، بہت چھوٹے پوائنٹ کو، ایکسٹریملی اسمال پوائنٹ کو آپ نے دیکھنا ہو، مثال کے طور پہ یہاں سے کسی ایس ایم ڈی کو دیکھنا ہے، تب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سے چھوٹی ٹکی کو یوز کرتے ہیں۔ تو چھوٹی ٹکی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ورکنگ ڈسٹینس کم ہو جاتا ہے، ہمیں آبجیکٹ کو بالکل اس کے پاس رکھنا پڑتا ہے، جبکہ بڑے لینس کے اندر ہمارا ورکنگ ڈسٹینس جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صرف فرق ہوتا ہے ان دونوں میں۔ تو میں میگنیفائر لیمپ کے متعلق دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ انیشلی اپنا کام شروع کریں تو میگنیفائر لیمپ آپ کی تمام ضروریات جو ہیں، ابتدائی ضروریات وہ پوری کر دے گا۔ اس کے اندر آپ دیکھ کر کام کریں گے تو ایک تو اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یار ان چیزوں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، دوسرا جب آپ مائکروسکوپ لیول کے اوپر جائیں گے تب آپ اور زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے۔ تو انیشلی جتنے بھی دوست موبائل فون ریپیئرنگ کا کام کرنا شروع کرتے ہیں، میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ میگنیفائر لیمپ لے لیں، لیکن ہائی کوالٹی اچھے والا لینا ہے۔ تو اس سے بھی واضح طور پر پوائنٹ نظر آتے ہیں۔ جب آپ یہ جو اس کی چھوٹی ٹکی یوز کرتے ہیں، اس سے آپ کو پوائنٹ بہت پیارے اور واضح نظر آتے ہیں، آپ کو کسی طرح کا کوئی پرابلم آتا ہی نہیں ہے، آپ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو پھر بھی جب اس کا کمپیریزن مائکروسکوپ سے کیا جائے تو پھر تو سورج کو چراغ دکھانے والی ہی بات ہے اس کے مقابلے میں مائکروسکوپ کو۔ تو آئیے میں آپ کو وہ مائکروسکوپ کے متعلق معلومات دیتا ہوں۔ بے شک آپ انیشلی مائکروسکوپ نہ لیں، کچھ عرصہ بعد لے لیں، لیکن آپ کو معلومات تو ہونی چاہیے نا۔ ہمارا مقصد بھی اس ویڈیو کے اندر اپنے محترم معزز دوستوں کو معلومات فراہم کرنا ہے۔ تو مائکروسکوپ جو ہے اس کا بجٹ اس سے تو کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس مائکروسکوپ ہے، یہ میکینک کی MC75T مائکروسکوپ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ مائکروسکوپ بناتی ہیں، اچھی بناتی ہیں، جیسا کہ ریلائف ہے اور اس طرح کی ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا کی بھی دستیاب ہیں، چائنا کی مائکروسکوپ جو ہیں وہ بھی اچھا کام کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف میکینک ہی اچھا برانڈ ہے، باقی بھی بڑے پیارے پیارے برانڈ ہیں، جس برانڈ کا آپ مرضی لے لیں، لیکن ہائی کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات دوستو آپ یہ نوٹ فرمائیں کہ اس طرح کی مائکروسکوپ جو ہوتی ہے اس کو انڈسٹریل مائکروسکوپ
माइक्रोस्कोप कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं ना, जो लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोप होती हैं, और ये जो है ये इंडस्ट्रियल माइक्रोस्कोप है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्रियल के भी आगे दो किस्में होती हैं, एक होती है बाइन्यूक्लर और एक होती है ट्राइन्यूक्लर। तो इस वक्त आप जो ये जो माइक्रोस्कोप देख रहे हैं ये ट्राइन्यूक्लर है, लेकिन बताना चाहूँगा कि बाइन्यूक्लर और ट्राइन्यूक्लर के अंदर क्या फ़र्क है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें इस माइक्रोस्कोप को अपने सामने लाकर, तो ये इसके दो आई पीस है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर तो एक डिजिटल कैमरा भी लगा हुआ है रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके अंदर एक यहाँ से मेमोरी कार्ड भी डलता है जिसकी मदद से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके पीछे देखें तो ये देखिए एक इसकी 12 वोल्ट की पावर लीड लगी हुई है, या दूसरी इसके ऊपर जो है HDMI डिस्प्ले है जो कि LCD हमारे यहाँ पर सामने लगी हुई है। तो इसको ट्राइन्यूक्लर इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर जो है कैमरा भी लगा होता है। जिन माइक्रोस्कोप के ऊपर कैमरा लगने की ऑप्शन हो उनको ट्राइन्यूक्लर बोलते हैं, और जिनके ऊपर कैमरा लगने की ऑप्शन ना हो उनको बाइन्यूक्लर बोलते हैं। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए कौन सी बेस्ट है? तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी, वीडियो पर्पसेस आपके नहीं हैं, तो बाइन्यूक्लर ज़बरदस्त है, क्योंकि आम रूटीन में हम इसके ऊपर किसी तरह का कोई कैमरा लगाने का हमें कोई फ़ायदा होता नहीं जब तक हमने वीडियो रिकॉर्डिंग ना करनी हो। तो अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, चाहे आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने स्टूडेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी भी काम के लिए, तब आप फिर ट्राइन्यूक्लर लें, उसके ऊपर ही कैमरा जस्ट लगेगा। तो अब हम समझते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होते हैं। जैसा कि अगर दोस्तों आप देखें तो आमतौर पर माइक्रोस्कोप के ऊपर तकरीबन 5 किस्म के कंट्रोल होते हैं। उन पांचों के पांचों को आप एडजस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे बता दूंगा कि पांचों के पांचों कौन से हैं। पहला कंट्रोल तो दोस्तों ये है, अगर आप इसको थोड़ा सा ढीला करते हैं तो उसकी मदद से आप माइक्रोस्कोप को घुमाकर दाएं बाएं कर सकते हैं। जहाँ पर आप करेंगे उसके बाद आप यहाँ से टाइट कर दें तो माइक्रोस्कोप उधर ही बंद जाएगी। पहला कंट्रोल हो गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीखिए, ये होता है इस नॉब से माइक्रोस्कोप पूरी की पूरी ऊपर को जाती है या माइक्रोस्कोप नीचे को आती है। दूसरा कंट्रोल हो गया दोस्तों। तीसरा कंट्रोल दोस्तों ये है, ये इसके जूम लेवल के लिए है। मिसाल के तौर पर इसको यूं ही समझिए कि जब आप मोबाइल फ़ोन की LCD स्क्रीन पर रख के उसको यूं करते हैं तो जूम हो जाता है ना, तो वही जूम यहाँ से होगा। या आप कह लें कि आपके पास डिजिटल कैमरा है, आप उसकी नॉब घुमाकर जूम करते हैं तो वही जूम यहाँ। जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे आपके जूम लेवल में इजाफा होगा। अभी मैं आपको तजर्बा भी करके दिखाऊँगा। दोस्तों ये 3 कंट्रोल हो गए। चौथा कंट्रोल आप सीखिए। चौथा कंट्रोल दोस्तों इसके यहाँ पर होता है, ये देखिए आई पीसेस को घुमाने वाला, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ क्यों नहीं घूमते, दोनों अलग-अलग क्यों घूमते हैं? दोस्तों दोनों अलग-अलग इसलिए होते हैं कि कुदरत ने हमारी आंखें दो बनाई हैं, लेकिन वैसे बाज़ का उनके ज़ाविये के अंदर या उनकी विजन के अंदर मामूली सा फ़र्क होता है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पर 2 कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। मिसाल के तौर पर एक बंदे की एक आँख की और शीशा है, दूसरी आँख का और शीशा, तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर वो देखेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से इस आँख को बंद करके इसमें से देखेगा, इसको घुमाकर अपने विजन को जब सबसे मोस्ट क्लियर होगा वहां पर छोड़ देगा, फिर इसको बंद करके इससे देखकर इस चीज़ को घुमाकर जहां पर इसको सबसे क्लियर इमेज मिलेगा वहां पर वो छोड़ देगा। तो दोस्तों ये जो माइक्रोस्कोप है ये स्टीरियो माइक्रोस्कोप है। स्टीरियो का मैं आपको बता देता हूं कि क्या होती है और उसके बाद इसका फ़ायदा भी बताता हूँ। और तीसरी बात कि डिजिटल ठीक है या ये ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा कि अगर अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 आई पीसेज हैं, एक ये है और एक ये है। अगर आप इसके दोस्तों सबसे नीचे देखें जहाँ से ये देखती है माइक्रोस्कोप, तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके नीचे भी 2 ही हैं, 2 ही आई पीस हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। दोनों जाविये से बिल्कुल ऐसे ही ये ऊपर तक हर चीज़ इसकी एक एक चीज़ यहाँ तक डबल है। तो जब हम कोई चीज़ इसके नीचे रखते हैं, मिसाल के तौर पर देखिए ये मैंने एक छोटा सा PCB ही मैं इसके अगर नीचे रखता हूँ तो दरअसल मैं जब यहाँ से देखता हूँ तो ये डबल होती है। 2 समझ लें कि माइक्रोस्कोप एक साथ हैं, तो वो 2 जाविये से मैं तस्वीर यहाँ से देख रहा होता हूँ। तो जब हम 2 जाविये से तस्वीर देखते हैं, एक इस एंगल से दूसरा इस एंगल से, तो हमें सही डिस्टेंस का अंदाज़ा हो पाता है एक तो, और दूसरा डिटेल्स जो है हमें वाज़े तौर पर समझ में आती है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि कुदरत ने हमारी आंखें भी 2 बनाई हैं, इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। अगर हमारी आंख एक होती तो उससे हमें बहुत मुश्किलात होती। तो उसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि जब 2 हम मुख्तलिफ एंगल से तस्वीर देखते हैं, जब हम उनको कंपेयर करके दोनों तस्वीरों को देखते हैं तो आगे जो भी चीज़ है उसकी सही डिस्टेंस का हमें अंदाज़ा हो पाता है कि दरअसल ये चीज़ हमसे इतने फासले के ऊपर है। और इसके अलावा जब 2 एंगल
एंगल से तस्वीरें मिलाकर हम उनको देखते हैं तो डिटेल भी बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो इसलिए जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप है सिर्फ यही लेनी चाहिए। यहाँ पर आप जब वर्किंग कर रहे होंगे, फ़र्ज़ कर ले कि आप यहाँ पर ट्वीज़र से काम कर रहे हैं, सोल्डरिंग आयरन से काम कर रहे हैं, तो आपको ये मस्ट है कि आपको सही डिस्टेंस का अंदाज़ा हो कि आप एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर हैं। तो ये हुई दोस्तों हमारी स्टीरियो माइक्रोस्कोप की बात। अब बात करते हैं कि डिजिटल लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए। तो दोस्तों डिजिटल माइक्रोस्कोप जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आपने वर्किंग करनी है उसके नीचे सोल्डरिंग आयरन से, तो यहाँ पर तो जैसा कि आपने अभी 1 मिनट पहले देखा था ना कि ये देखें 2 एंगल से तस्वीरें ये एक्चुअली बना रही होती है। ये देखिए 2 इसके अंदर हैं, बीम्स हैं, लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप होती है डिजिटल, इसके अंदर जस्ट एक जाविये से सीधा कैमरा तस्वीर खींच रहा होता है, जिससे हमें सही डिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता और हमें मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना बहुत आसान, मज़ेदार, कंफर्टेबल है। इसके बरअक्स डिजिटल को इस्तेमाल करना मुश्किल और अनकंफर्टेबल है और फेलियर का चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा अपने दोस्तों को जब भी वो माइक्रोस्कोप लें तो वो कौन सी लेंगे, वो इस तरह की ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप ही लेंगे। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने माइक्रोस्कोप के 5वें कंट्रोल की तरफ, जिसका मैंने आपको बताना था। तो वो दोस्तों 5वां कंट्रोल जो है वो इसके कैमरे का होता है। जब हम यहाँ से अपनी तस्वीर देख रहे हैं, क्लियर इमेज वाज़े नज़र आ रहा है, तो बाज़ का तो वो LCD के ऊपर ब्लर होता है, तो उसको हम यहाँ से सेट करते हैं। तो आइए अब दोस्तों अमली तौर पर अपनी माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ हमने करना है। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर नीचे एक छोटा सा PCB रखा है। हमने इसको वाज़े तौर पर देखना है कि ये माइक्रोस्कोप के ऊपर हमें कितना वाज़े तौर साफ नज़र आता है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में LED लाइट का कंट्रोल है। मैं इसको दबाता हूँ तो मेरी LED लाइट जल पड़ती है। याद रखिए जितनी LED ज़्यादा होगी, जितनी तेज़ रोशनी होगी, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। माइक्रोस्कोप के नीचे हमें एक्सट्रीमली तेज़ लाइट चाहिए होती है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ऊपर जाएँ तो ये दोनों आई पीसेस हैं। अगर दोस्तों अगर देखें तो ये भी आपस में अगर एक को आप करो तो दोनों साइड पर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक और पॉइंट नोट फरमाएं कि जब भी आपने माइक्रोस्कोप यूज़ करोगे तो आप इन दोनों को उस लेवल के ऊपर रखोगे जहाँ पर आपकी आंखें दोनों तस्वीरों को एक साथ मिलाकर देखें। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो आपको लेफ़्ट और राइट दोनों में से नज़र आएगा, लेकिन आपको उन दोनों तस्वीरों को मिला कर देखना है, तब आपका दिमाग बेहतर डिटेल्स को समझ पाएगा। अगर आपने दोनों इमेजेस को अलग-अलग ही समझने की कोशिश की तो नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब आप माइक्रोस्कोप पहले दिन लोगे तब आपको ये चीज़ें सारी की सारी फेस करनी पड़ेंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन 1 हफ्ते की मशक के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसको इस्तेमाल करने में। पहले दिन जब आप लोगे तो आप कहोगे यार माइक्रोस्कोप बिल्कुल ही फजूल है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन जब आप इसको चलाने में आपको महारत हो जाएगी, आप कहेंगे यार ये तो एक टेक्नोलॉजी का शाहकार है, मज़ा आ गया, आप ऐसे कहेंगे मेरी तरह। तो आइए अब नीचे ये जो PCB पड़ा है इसके आप पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की कोशिश करते हैं। एक आई पीस से आप देखेंगे, दूसरे से मैं। यहाँ से हम अपनी नज़र को डालते हैं आई पीस के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आमतौर पर माइक्रोस्कोप का व्यू जो है वो गोल होता है। ये आपको याद रखना है कि माइक्रोस्कोप का व्यू गोल होता है। तो ये हमें तस्वीर नज़र आ रही है। अब हम अपनी ये साइड वाली नोब है, इसको हम घुमाते हैं तो देखिए हमारे जूम लेवल में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन देखिए जूम मैंने कर दिया, लेकिन साथ ही मेरा जो फोकस है वो ख़राब हो गया। अब इस नॉब को हमने घुमाकर अपना फोकस बना लेना है, फिर और जूम करते जाइए। जैसे जैसे आप घुमाते जाएंगे आपके जूम लेवल में इजाफा होता जाएगा। हर दफ़ा जो ही आपने जूम किया साथ ही फोकस भी आउट। अब फोकस दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर और पास जाइए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पॉइंट हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही दोनों आँखों से इन इमेजेस को कंपेयर करके देखेंगे। लेकिन दोस्तों जब आपका डिस्टेंस चेंज होगा, यहाँ पर किसी भी पॉइंट का आप डिस्टेंस चेंज कर दें तो उसके बाद आपका जो फोकस है वो भी आउट हो जाएगा। वो भी आपको दोबारा इस नॉब से घुमाकर ये देखिए इस पॉइंट के ऊपर सेट करना होगा। जैसा कि अगर आप देखें तो ये पॉइंट आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही हम दोनों आँखों से देखेंगे और हमें चीज़ें बहुत ही डिटेल्ड नज़र आएंगी।
माइक्रोस्कोप को दोस्तों हम पीसीबी के अलावा आमतौर पर मुख्तलिफ स्ट्रिप्स को रिपेयर करने में कसरत से इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक एलसीडी की स्ट्रिप है। एलसीडी की स्ट्रिप हो या कोई भी स्ट्रिप हो, जब वो कट जाए, वहीं कहीं से वो ब्रेक हो जाए, तब वो माइक्रोस्कोप के बगैर रिपेयर करनी मुमकिन नहीं होती, क्योंकि पॉइंट बहुत एक्सट्रीमली छोटे होते हैं, हम नहीं देख सकते। तो आइए ज़रा इसको डिजिटल कैमरे के नीचे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको तमाम इसकी लाइनें, पॉइंट बिल्कुल वाज़ेह और इतने बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। जब कोई भी चीज़ आपको इतनी बड़ी नज़र आ रहे, आपकी आंखों के सामने सूरज की तरह रोशन हो, तब उसको रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आप कर लेंगे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें मैग्नीफायर लैंप या माइक्रोस्कोप में दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग नया अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कारोबार शुरू कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो इब्तदाई तौर पर सिर्फ मैग्नीफायर लैंप ले लें। तो मैग्नीफायर लैंप उनकी छोटी मोटी ज़रूरियात पूरी कर देगा। जिस लेवल तक वो इस वक्त हैं वहाँ पर ये आपको वाज़ेह तौर पर काम दे जाएगा। ये जो माइक्रोस्कोप होती है ये चिप लेवल के काम के लिए ज़रूरी होती है। अगर आप इसका समझते हैं कि आपका चिप लेवल का काम है, आपने आईसीज नए लगाने होते हैं, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप मस्ट है। चिप लेवल का काम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर नीचे बॉल्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, तो वो हमें माइक्रोस्कोप के बगैर वाज़ेह नहीं नज़र आते। उनमें से कोई छोटा होता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई नहीं लगा हुआ होता, तो इस वजह से वो फेल होता रहता प्रोसेस। जबकि माइक्रोस्कोप से वो प्रोसेस एक ही दफ़ा और सक्सेसफुल होता है। इसलिए चिप लेवल का काम करने के लिए माइक्रोस्कोप मस्ट है, ज़रूरी है, हर ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन अगर चिप लेवल का काम नहीं है, तो वैसे कोई पॉइंट वगैरह देखने हैं, तो उन छोटी मोटी रिक्वायरमेंट के लिए मैग्नीफायर लैंप एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। तो दोस्तों ये थी माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर लैंप के मुतालिक आपको मालूमात। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, आपको कुछ मज़ीद दिलचस्प चीज़ें सीखने को मिली होंगी। दोस्तों मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स है, आपने उसमें से सिर्फ एक वीडियो देखिए, पूरा कोर्स आपने देखना है। तो उसमें मैंने ना बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेकर, जैसे आम बंदा जिसको इतनी नहीं समझ, उसको अपने जहन में रखकर फिर मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो आप सारी की सारी वीडियोस देखिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत मालूमात मिलेंगी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के मतलब, और अगर आप उनको सीखेंगे प्रैक्टिकली तो आप इंशाल्लाह घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन के अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे। आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने दिल से कोशिश की है कि मैं हर मालूमात अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को फराहम करूं। तो दोस्तों एंड पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप हमें लाइक सब्सक्राइब दे दें तो ये आपकी नवाजिश होती है। इसके अलावा दिल में सवाल तो आते हैं, वो आप कमेंट्स के अंदर पूछें, मैं मोस्टली जो है जवाब देता हूँ, रिप्लाई देता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपका क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया देखने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।